A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, for the academic year 2021 and 22, the whole syllabus of class 12th accountancy will be divided into the two term 1 and term 2. And we already completed our whole syllabus up to 30 August 2021. So after completion of the whole syllabus, let's see the chapter wise revision. Firstly, we discuss the content related to the revision test paper 1, that is an financial statement of company and financial statement analysis. Thereafter, we discussed the concept related to the financial statement analysis and the content and formula and practical problem related to the paper 2, that is an accounting ratio. So after completing the two chapters which are related to the term 1, which are purely related to the multiple choice question, now we are moving to the first chapter of term 1, that is an accounting for partnership firm fundamental. And in this chapter, you know very well, this chapter is a fully of the mixture of the different formula, different theoretical aspect and practical aspect. So without taking any time, let's discuss the questions which are purely based on the multiple choice questions, and it is very important for the term 1 examination. So the question says that, according to profit and loss account, the net profit of the year is 1,50,000. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? द नेट प्रॉफिट इज 1,50,000. नेट प्रॉफिट इज 1,50,000 is the net profit, and the total interest on partners capital, the interest on partners capital, partners की capital का interest कितना है? The interest on partners capital is 18,000 and interest on partners coin, interest on partners ड्रॉइंग. सो पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? 18,000 और पार्टनर्स की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना है? इट विल बी 2,000. सो ये देयर आर 3 इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ऐसा नहीं कि यू हैव टू ड्रॉप द फॉर्मेट ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सॉल्यूशन करना है. यही तो डिफरेंस है सब्जेक्टिव पेपर्स में ऑब्जेक्टिव पेपर्स में. आपको इसमें डायरेक्ट क्या करना है? सॉल्व करके आंसर निकालना है. बिकॉज द नेट प्रॉफिट इज 1,50,000. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॉइन इज एन इनकम. सो इट विल बी अ प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस and it is an income under the PL appropriation account. So the net profit shows by the PL appropriation account, which is also known as the divisible profit, जिसे हम divisible profit भी कहते हैं, and which have to distribute it among the partner in their old ratio, and it will be 1,34,000. So the correct answer is 1,34,000 because 18,000 is an expense and 2,000 is the income for the business. So one more question which are also related to the PL appropriation account and the chapter, very famous chapter, that is an accounting for partnership firm fundamental. That is an, let's discuss about it. So the question is, A, B, C are partners, A, B and C are partners, and the capital of A
is 3 lakh and the capital of B is 1 lakh. And the very interesting line is given in this question is C has not invested any amount as capital. C ने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है एज अ कैपिटल. C ने इन्वेस्ट ही नहीं किया कोई अमाउंट. एंड अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस. मतलब वो क्या पूरे बिजनेस को मैनेज तो करते हैं बट उसने एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं किया एज एन कैपिटल. द फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बट ही अलोन मैनेज द बिजनेस द होल. मतलब ये पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं. सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी. सी वॉन्ट्स, सी चाहिए, सी को मिलता नहीं है टर्म के अकॉर्डिंग. सी वॉन्ट्स, सी ये कहता है कि मैं काम भी कर रहा हूँ तो मुझे 30,000 सैलरी दो और कैपिटल भी नहीं लगाया. ओके. एंड फर्म अर्न अ प्रॉफिट. फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ फर्म को, इट विल बी 1,50,000. सो आपको ये बताना है, यू हैव टू से समथिंग. व्हाट इज द अमाउंट विच आर शेयर्ड बाय ईच पार्टनर एज अ प्रॉफिट. मतलब हर पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Basically you can see that there are 3 partner A, B, C, but you can see that C ने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है. So that's why C ने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है. That's why C is not a partner and he is not able to receive anything. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है A, B, C are partners and the profit sharing ratio is not given. Sorry for that. A ने कैपिटल नहीं लगाया but he is a partner. उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया. So in this situation, according to my suggestion, according to my experience, says that this type of the question is very impressive because you know very well the profit is 1,50,000 and in the absence of any information, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो PSR विल बी, PSR क्या होगा? 1:1:1. क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? अमंग बिटवीन द पार्टनर इज 1:1:1. एंड इट्स वेरी क्लियर. A, B, C आर पार्टनर्स. सो A, B and C तीनों को 1,50,000 का 1/3, इट मीन्स 50,000 रुपीज़ क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि टेल मी व्हाट इज़ द रेशियो. और ये कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया, किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया, सो ही इज़ नॉट अ पार्टनर. बट दिस इज़ अ प्रोविज़न कि अगर कोई पार्टनर विदाउट कैपिटल बनना चाहता है तो बन सकता है, अगर वो सारे बिजनेस को क्या कर रहा है? एलोन ही मैनेज कर रहा है. लेकिन इसमें एक टर्म ये भी है, किसी को सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अब्सेंस में कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन या फी पे नहीं किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. A, B, C आर पार्टनर इन द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट. A, B, C 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर बिजनेस में क्या है? एंटर किया तीनों. और ही इज अ पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट. 3 पार्टनर है A, B, C और तीनों पार्टनर्स हैं और बिना किसी एग्रीमेंट के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. इट मीन्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1. दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000, 30,000, 20,000 बाई वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म. और तीनों ने कैपिटल डिपॉजिट किया. ये इनका PSR हो गया और इनकी कैपिटल क्या है? ये कैपिटल कितना है? 50, 40, 50, 30, 20. 50,000, 30,000 एंड
50,000, 30,000 and 20,000 is the capital by way of capital in the firm and was unable to work for 6 months. और वो काम नहीं किया. कौन अनेबल था वो काम करने को? A is unable to work for 6 months. A ने 6 महीने काम नहीं किया. At the end of the year प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000. प्रॉफिट कितना है? 15,000. सो आपको ये बताना है A, B, C तीनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितना तीनों प्रॉफिट शेयर करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 1,50,000. सो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन A, B एंड C. A, B एंड C की प्रॉफिट हो जाएगी कितना कितना? 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 1/3. इट मीन्स A को प्रॉफिट मिलेगा 5,000, B को मिलेगा 5,000, C को मिलेगा 5,000. Why? Because you can see that A is, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा टर्म ये लग गया है कि A is not able to work. A ने कितने महीने काम नहीं किया? A is unable to work for 6 months. तो इससे कोई इफेक्ट नहीं करता है. A is a partner. अगर वो किसी कारण से ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा है सो इट इज़ ओके. उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे पूरा प्रॉफिट मिलेगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दैट इज एन 5,000, 5,000, 5,000 provided to A, B and C respectively. So please note down. So after completing this topic, now we are solve the various formula and various things which are already discussed in the last video, that is in manager's commission, and also we discuss the different questions which are related to the theoretical part of the first chapter, that is an accounting of partnership firm. So let's we move to the next topic, that is in manager's commission. Commission. You know very well there are basically two formula related to the manager's commission. Net profit. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दो तरह से मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड करते हैं. मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइडेड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग such commission, after charging such commission. Yani in this situation we have to provide the manager's commission by two way. First is net profit before charging such commission and second is net profit after charging such commission. अगर हम manager's commission provide करें before charging such commission, so the value amount of the commission is net profit into rate upon 100. It is a very simple. और अगर क्वेश्चन में है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, सो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता है. नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 49,500. क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट इज 49,500. मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%. कमीशन कितना प्रोवाइड करना है? कमीशन प्रोवाइड करना है 10%. वो भी बिफोर का वर्ड यूज किया, बिफोर. सो मैनेजर्स कमीशन कितना प्रोवाइड किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 49,500 का 10%, क्योंकि बिफोर चार्जिंग का बात हो रहा है. सिंपल सा. ये इस तरह के भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको एक एक बार देखना ज़रूरी है. दूसरा सिमिलरली क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट अगर 79,800 है, अगर नेट प्रॉफिट
79,800 है, और मैनेजर्स कमीशन का जो रेट है वो दिया है 5% आफ्टर के बारे में शायद बोला है, आफ्टर चार्जिंग, यस आफ्टर चार्जिंग बोला है। सो मैनेजर्स कमीशन कैसे फाइंड आउट होगा? सो मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 79,800 इंटू 5/105, 21 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स में, ठीक है, 3 टाइम्स में आप काट दीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। सो ये इट विल बी 3,990, ओके, 3,990 आ गया, 3,800 आ गया, बट चेक कर लीजिएगा इसको। उसके बाद एक क्वेश्चंस और हैं जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हैं, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मोहित एंड रोहित वेर पार्टनर्स इन अ फर्म with a capital of 80,000 and 40,000 respectively. The firm earned a profit of 30,000 during the year. Mohit's share of profit is very simple कि कैपिटल 80,000 40,000 है और प्रॉफिट है 30,000, तो सिंपल सा है, यहाँ पे इक्वल रेशियो मिलेगा 15,000, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें गिवन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक यू नो वेरी वेल कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट को लेकर दो कॉन्सेप्ट गिवन किए गए हैं। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, सो देयर आर टू वे बाय विच वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। सो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है, सो इन दिस सिचुएशन वी प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा बनाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल को हम फिक्स रखना चाहते हैं, और जब हम कैपिटल को फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं तो वहाँ दो अकाउंट की जगह सिर्फ एक अकाउंट बनता है, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है कि सारे एप्रोप्रिएशंस आइटम, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, नॉर्मल ड्राइंग हो, कैपिटल ड्राइंग हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो सब के सब किस में रिकॉर्ड होते हैं? इन द पीएल, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ फिक्स आइटम डिसाइड होते हैं, जैसे कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना एडिशनल किया, कितना विड्रॉ कर लिया, ये सारी चीज़ें, और अदर कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हाँ, जो एप्रोप्रिएशंस आइटम्स हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है? सिंपल सा है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? ओनली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है? डेबिट, क्रेडिट, बोथ। सिंपल सा है, करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरीज ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। तो करंट अकाउंट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड होता है, सैलरी भी रिकॉर्ड होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होता है, तीनों रिकॉर्ड होता है। इस तरह के एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। Now we are moving to the very important and formula based topic, that is an interest on drawing. Interest on drawing. You know very well what is the meaning of interest on drawing. You know very well, when any partner withdraws some amount from the business for personal use, it is called interest. It is called drawing. And on such amount
partnership firm charge the interest at the prescribed rate, but in the absence of partnership deed, you know very well there is a no compulsion of charging the interest on drawing as well as the interest on capital. कोई कंपल्सरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ही होगा, बट इसमें आपको दो कंडीशन याद होगा, मैंने बताया था कि when we charge the interest on drawing on the amount of the drawing, there are basically two cases. The first will be when amount of drawing, मतलब जितना पैसा निकाल रहे हैं, एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग, मतलब जब निकाल रहे हैं. अमाउंट का मतलब है हाउ मच, कितना निकाल रहे हैं, एंड पीरियड का मतलब होता है व्हेन, कब निकाल रहे हैं. पीरियड ऑफ ड्राइंग आर इक्वल. यहाँ इक्वल का सेंस है कि अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी पैसा निकाल रहे हैं, 10,000 निकाल रहे हैं, तो हर मंथ निकाल रहे हैं 10,000, मतलब अमाउंट विल बी सेम एज वेल एज द पीरियड ऑफ ड्रॉइंग इज ऑल्सो सेम. मतलब हर महीने की अगर फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं तो सेकेंड मंथ के भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेट को पैसा निकाल रहे हैं. सो पीरियड विल बी सेम. सो इन दिस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का. पहला इज सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड. सो देयर आर टू मेथड by which we calculate the interest on drawing. The first will be a simple method and second is a product method. Under the simple method, the interest on drawing equals to, interest drawing कैसे निकलता है, the amount of drawing into rate of drawing upon 100 into months upon 12. मंथ्स में जिस डेट को हम निकाल रहे हैं उसके बाद से हम जो लास्ट डेट है उसकी मंथ काउंट करते हैं. मंथ्स के अलावा अगर डेज है तो डेज के लिए हम लोग क्या करते हैं 365 से. सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड, एज यू नो वेरी वेल. पहले भी पढ़ा चुके हैं सारी चीज़ों को, आप तो पढ़ भी चुके हैं. और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इनटू 1/12. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/12? जब भी हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी हम पीरियड मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं while we calculate the total product, because you know very well what is the total product. Total product is the amount of drawing into months, जितने months के लिए हमने drawing किया हुआ है. So this is a very simple formula of interest on drawing when amount of drawing and the period of drawing are equal. So please note down. The second situation which are related to the calculation of interest on drawing is when amount of drawing and the period of drawing, when the amount of drawing and the period of drawing are not equal, sorry for that. इससे पहले जो हमने सिचुएशंस पढ़ी हुई है वो नॉट इक्वल की थी. इट मीन्स प्लीज नोट डाउन when, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी जो थोड़ा छोटी सी मिस्टेक हुई है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए. सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड आर यूज्ड व्हेन amount of drawing and period of drawing, मतलब जिस डेट को आप निकाल रहे हैं वो दोनों ही क्या अनइक्वल हो, एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग आर नॉट इक्वल. मतलब जब आप कोई अमाउंट निकाल रहे हैं एज ए ड्राइंग और वो भी अनइक्वल है, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000, कभी 18,000, कभी 9,000, और साथ ही साथ डेट इज ऑल्सो नॉट डिसाइडेड. पीरियड ऑफ ड्राइंग मतलब कभी 1 जनवरी को, कभी 15 जनवरी को, कभी 20 अगस्त को, कभी 20 फरवरी को, यानी डेट भी डिसाइड नहीं है. तो सिचुएशन में हम क्या फॉलो करते हैं? सिंपल और प्रोडक्ट मेथड. वही छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यानी ये जो कंडीशन है बी, ये कंडीशन नंबर बी है.
कंडीशन नंबर ए क्या थी? When amount of drawing and period of drawing are not equal, and in this situation we have to follow the simple method और product method. दोनों से आंसर सेम आता है. But the amount of drawing and the period of drawing are equal. यानी जिस डेट को हम निकाल रहे हैं और जो पीरियड है वो दोनों ही इक्वल है, मतलब दोनों ही प्री डिसाइडेड है. तो इस सिचुएशन में कई तरह की ड्राइंग हम फोकस करते हैं. पहला मंथली ड्राइंग, फर्स्ट इज अ मंथली ड्राइंग, second is a quarterly drawing, third is a half yearly drawing. बेसिकली ये क्या होता है? मंथली ड्राइंग में तो हम साल में 12 बार पैसा निकाल रहे हैं. साल में 12 बार हम लोग क्या कर रहे हैं? अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस. ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? मंथ में 12 बार पैसा निकालते हैं. क्वार्टरली में हम लोग क्या करते हैं? मंथ में 4 बार पैसा निकालते हैं, और हाफ ईयरली में मंथ में 2 बार. सो बेसिकली ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके हेल्प से, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना पीरियड ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, मतलब पीरियड मतलब जब हम पैसा निकाल रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड है. मंथली ड्राइंग में हमें डिसाइडेड है कि हम हर महीने पैसा निकालें, क्वार्टरली में डिसाइड है कि हम हर एक क्वार्टर में पैसा निकालें, और हाफ ईयरली में भी डिसाइडेड है कि हम हर 6 महीने पे पैसा निकालें. सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन बाई विच वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और इसके डीपली फॉर्मूलाज हैं, कई केसेस हैं इसमें, कई सब सिचुएशंस हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए.